Good morning students, this is part 3 of the chapter Market Mechanism, Equilibrium Price and Quantity in a Competitive Market, and in this video first we are going to learn about simultaneous changes in demand and supply. Demand and supply में जब दोनों में एक साथ changes होंगे तो how it will affect the equilibrium price and equilibrium quantity. When both डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीजेस, यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं जब दोनों डिमांड और सप्लाई डिक्रीज़ करें. फर्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा, डिक्रीज़ इन डिमांड इज इक्वल्स टू डिक्रीज़ इन सप्लाई. इट मीन्स डिमांड जितनी डिक्रीज़ हो रही है उतनी ही सप्लाई डिक्रीज़ हो रही है. तो उस केस में क्या इफेक्ट होगा? इफ़ बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीजेज इन द सेम प्रपोर्शन, then equilibrium price will remain the same but equilibrium output will decrease. क्या होता है बेटा? equilibrium price में कोई changes नहीं आएंगे but equilibrium output decrease करेगा. पहले मैं अब आपको ग्राफ समझाती हूँ. OX axis contains quantity, OY contains the price. DD is an original demand curve and SS is the original price curve. E is an equilibrium point where demand and supply meet each other. E equilibrium point है जहाँ पे demand और supply क्या कर रहा है? meet कर रहा है. Now there is a decrease in demand. It means the demand curve shifts towards the left. It D1 and there is a decrease in supply also. The supply curve also shifts to the left, that is S1. Now D1 and S1 supply curve and the demand curve, they intersect each other at point E1. It means E1 आपका न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया. बट हम ग्राफ में देख रहे हैं E और E1 सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं. इसका मतलब प्राइजेस में चेंजेस नहीं आए और क्वांटिटी डिक्रीज़ हो गई. प्राइस सेम रहा OP और क्वांटिटी OQ से क्या हो गया बेटा? OQ1. नाउ वी विल रीड. व्हेन डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीजेस इन द सेम प्रपोर्शन at this point OP is equilibrium price and OQ is in equilibrium quantity. Demand decreases to D1 and supply decreases to S1. The new curve intersect each other at point E1. It shows the equilibrium price remains constant. Both demand and supply have decreased in the same proportion. However, equilibrium quantity decreases to OQ1. It means जब सेम प्रपोर्शन में डिमांड और सप्लाई डिक्रीज हो रहे हैं तो इक्विलिब्रियम प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है? आई होप इट इज़ क्लियर. Now, when decrease in demand is more than the decrease in supply, अब डिमांड में ज़्यादा कमी आ गई और सप्लाई में कम. दोनों डिक्रीज़ हो रहे हैं पर डिमांड डिक्रीजेज मोर देन द सप्लाई. इन दिस केस व्हाट विल हैपन बेटा? इफ डिक्रीज इन डिमांड इज मोर देन द डिक्रीज इन सप्लाई, द इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल. प्राइस कम हो जाएगा बेटा. ठीक है? तो अब पहले हम आपको ग्राफ समझाते हैं. OX axis contains the quantity and OY contains the price. DD demand curve है, SS supply curve है. DD demand curve और SS supply curve E point पे intersect कर रहा है. It means it is an equilibrium point. OP is an equilibrium price and OQ is an equilibrium quantity. Now demand decrease हो गई. It means DD कर्व शिफ्ट हो गया D1 पे. सप्लाई भी डिक्रीज़ हो गई. सप्लाई कर्व SS कर्व शिफ्ट हो गया S1 पे. नाउ न्यू डिमांड कर्व एंड न्यू सप्लाई कर्व दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट E1. ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? E1 पे. एंड दिस पॉइंट इज़ लोअर देन एन ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्राइस. और E1 पॉइंट क्या है? ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट से क्या है? नीचे है. इट मीन्स प्राइस फॉल हो गया है ना. OP से एक प्राइस अब कहाँ पे आ गया? OP1 पे. आई होप इट इज़ क्लियर.
Now we will read it. At this point, OP is equilibrium price and OQ is equilibrium quantity. Demand decreases to D1 D1 and supply decreases to S1 S1. This new curve intersect each other at point E1, which is the new equilibrium point. जो new equilibrium point था. Thus, the equilibrium price reduces to OP1 because decrease in demand is more than the supply. यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा कम है और सप्लाई उससे ज़्यादा है, इसलिए प्राइजेस क्या हो गए, कम हो गए. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड विल डिक्रीज टू OQ1. क्वांटिटी भी OQ से कहाँ हो गई, OQ1 पे. इट मीन्स हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, व्हेन डिमांड डिक्रीजेज मोर देन सप्लाई देन प्राइस ऑल्सो डिक्रीजेज एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल ऑल्सो डिक्रीज. नाउ थर्ड पॉइंट, when decrease in demand is lesser than decrease in supply. जब डिमांड में डिक्रीज हो रहा है पर डिमांड में कम डिक्रीज हो रहा है और सप्लाई में डिक्रीज ज़्यादा है, मतलब सप्लाई ज़्यादा कम हो रही है और डिमांड कम कम हो रही है, दोनों कम हो रहे हैं यहाँ पे. तो उस केस में क्या होगा बेटा, वी विल फर्स्ट लर्न इट विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ. OX axis contains quantity, OY contains price. Again वे सेम थिंग, DD डिमांड कर्व है, SS सप्लाई कर्व है और ये E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इट मीन्स OP प्राइस हो गया और OQ क्वांटिटी हो गया. अब डिमांड में जो फॉल हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, वो कम था और सप्लाई ज़्यादा कम हो गई. तो न्यू पॉइंट जो डिमांड कर्व का है वो D1 D1 है और सप्लाई कर्व का S1 S1 है. वो जो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट E1 पे, ये अबव द इक्विलिब्रियम पॉइंट लाई कर रहा है बेटा. इट मीन्स प्राइजेस क्या हो जाएंगी, यहाँ पे प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगी और क्वांटिटी पर डिक्रीज हो रहेगी. आई होप इट इज क्लियर. नाउ वी विल रीड फ्रॉम द फिगर. इट इज क्लियर दैट द लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व फ्रॉम DD to D1 D1 is proportionally less than the leftward shift in the supply curve from SS to S1 S1. The new equilibrium point is E1. Equilibrium price increases from OP to OP1. Equilibrium price increase हो गया OP से OP1 पे and equilibrium quantity decrease हो गया from OQ to OQ1. Decrease in quantity is greater than increase in price. I hope it is clear. Now, यहाँ पे हमने साइमल्टेनियस चेंजेस पढ़े हैं जब डिमांड और सप्लाई दोनों डिक्रीज हो रहे हैं. अब we are going to learn effects of simultaneous increase in demand and supply. जब डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज कर रहे हैं तो फर्स्ट पॉइंट बेटा वही है, इफ़ इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई आर इक्वल मैग्नीट्यूड. अगर इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई इक्वल है तो प्राइस क्या रहेगा, इट रिमेन्स अनचेंज्ड. बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. वी कैन लर्न दिस विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ. OX axis contains the quantity and OY contains the price. DD is the demand curve and SS is the supply curve. They intersect each other at point E. वो E पे intersect कर रहे हैं. It means OP is an equilibrium price and OQ is an equilibrium quantity. Now, there is an increase in a demand. Demand curve DD से D1 D1 पे shift हो गया towards right. सप्लाई में भी इंक्रीज है बेटा. इट मीन्स SS कर्व शिफ्ट्स टूवर्ड्स द राइट, S1 S1. नाउ यू कैन सी हियर व्हेन न्यू डिमांड कर्व एंड न्यू सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट, दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट E1. नाउ दे बोथ आर लाइंग इन द सेम प्लेन, मीन्स E और E1 दोनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं. इट मीन्स प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है. सप्लाई क्वांटिटी की क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है.
तो इसमें क्या इफेक्ट हमने पढ़ा, जब डिमांड और सप्लाई सेम प्रपोर्शन पे इंक्रीज़ हो रही है तो प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज़ हो जाएगी। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. You have to write in detail this graph in your copies. Now, second point, if increase in demand is of greater magnitude than the increase in supply, both the equilibrium price and equilibrium quantity will increase. मतलब यहाँ पे अगर डिमांड ज़्यादा है और इफ़ इंक्रीज इन ग्रेटर दैन द इंक्रीज इन सप्लाई, डिमांड बहुत ज़्यादा है सप्लाई से, सप्लाई भी बढ़ रही है पर डिमांड उससे ज़्यादा रेट से बढ़ रही है, उस केस में क्या होगा बेटा, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों इंक्रीज हो जाएंगे. नाउ आई विल एक्सप्लेन इट दिस ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. OX axis contains the quantity, OY contains the price. DD is an original demand curve and SS is the original supply curve. D curve and supply curve intersect each other at point E. It means ये आपका equilibrium point है. OP is an equilibrium price and OQ is an equilibrium quantity. Now demand increase हो रही है with the greater than the increase in the supply. तो डिमांड का कर्व देखिए ज़्यादा आगे है D1 और सप्लाई भी इंक्रीज़ हो रही है बट सप्लाई कम इंक्रीज़ हो रही है तो उनके बीच का गैप कम है SS का और S1 का. अब न्यू डिमांड कर्व एंड न्यू सप्लाई कर्व D1 S1 ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट E1 एंड this point E1 is above the equilibrium point, original equilibrium point. ये E1 प्राइस इक्विलिब्रियम पॉइंट से क्या है, अबव है. इट मीन्स प्राइजेस क्या हो गए, राइज हो गए. OP से OP1 में हो गया और क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो गई बेटा, इंक्रीज हो गई. OQ से OQ1 हो गया. आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ द थर्ड वन, इफ़ इंक्रीज इन सप्लाई इज़ ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड देन इंक्रीज इन डिमांड, सप्लाई ज़्यादा रेट से इंक्रीज हो रही है एज़ कम्पेयर टू डिमांड, इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज. क्या होगा बेटा, इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल हो जाएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी. वी कैन एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम ऑल्सो. OX axis contains the quantity demanded, OY contains the price. DD ओरिजिनल डिमांड कर्व है, SS ओरिजिनल सप्लाई कर्व है. They both intersect each other at point E. ये E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इट मीन्स OP आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है और OQ आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है. नाउ डिमांड इंक्रीज हो रही है तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे बेटा. DD से D1 में शिफ्ट हो गया और सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है और सप्लाई ग्रेटर रेट से इंक्रीज हो रही है, इसलिए सप्लाई का डिफरेंस देखो ज़्यादा है. ठीक है, ऐसे सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया S1 पे. नाउ न्यू डिमांड कर्व एंड न्यू सप्लाई कर्व दैट इज D1 एंड S1 दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट E1. कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, E1 पे, विच इज़ लोअर देन द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट जो नीचे है E से. इट मीन्स प्राइजेस कम हो जाएंगे, OP से OP1 पे फॉल कर गए और क्वांटिटी बट क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट के अकॉर्डिंग आपकी क्वांटिटी OQ1 है जो पहले क्या थी OQ. आई होप इट इज़ क्लियर. थैंक यू स्टूडेंट्स.